Dear parents and my dear students, a very good morning to all of you. It is with immense joy and pride that we organize Ensemble 2022, a motley of creativity, talent, knowledge, and 21st century skills. This annual event is of utmost significance for it offers students an opportunity to depict diversified themes after exploring, investigating, analyzing, problem solving, designing, and editing. Collaborative nature of ensemble not only enhances their skill in team building and leadership, but also reinforces the social and emotional learning. Dear parents, we view our world with a global perspective now. The aim of this project is to give learners an environment which stimulates intrinsic curiosity, inquiry based, and experiential learning in hope to transform them into individuals who become successful professionals, civic leaders, and informed citizens of the global society. Dear children, I have complete faith that this year too Ensemble has given you a brilliant platform to unleash your hidden potential and fly with broader wings. I hope you have also learned to understand, appreciate, and reciprocate the global issues and are progressing towards becoming an active participant in addressing and resolving them. Here, I would like to share a poem. Not everyone gets it. Not everyone gets it right the first time. Success is unfortunately a wicked, difficult climb. However, for those who just don't lose hope, success will throw down a life saving rope. Work hard, work smart, and you will succeed. Don't follow the rest of the world, take lead. All my best wishes I send to my dear students. I hope you keep getting successful till the end. I would like to congratulate Principal Seema Agarwal, the proud parents, supervisory heads, class coordinators, and the team of most hardworking teachers and sincere students on the accomplishment of this sterling event. I look forward to witnessing the enthralling and gripping presentations by my dear students. Thank you, dear children, and all the best. May God bless you always. My dear students and parents, a very pleasant good morning to all of you. I welcome you all to Ensemble 2022, a live project display of club activities which illustrate how our young minds apply their energies in understanding and relating subjects like mathematics, science, and English through activities. Our core focus in the school has always been to impart such learning which engages the students in doing playful activities with lots of fun. Ensemble stems out of our school core focus and philosophy wherein each child is given importance to foster his or her interest by engaging in playful activities. Ensemble has definitely been instrumental in igniting curiosity, developing reasoning ability, and enhancing mathematical capabilities of our students. It aims to encourage mass participation and hones their communication skills. More than this, it also fosters joy and happiness in their life, accompanied with the spirit of working together in presenting their novel ideas. I take this opportunity to express my sincere gratitude to you, dear parents, for your kind support and cooperation in school events. Your appreciation of our efforts strengthen mutual bonding and trust, leading to an ideal conditions for the child. I would like to congratulate Mrs. Ritu Mahajan, the supervisory in charge, and her team of dedicated teachers for engaging and encouraging the students to bring out their best. I look forward
to some amazing presentation by my enthusiastic children. Thank you. सुप्रभात। आज मैं पूजा गुप्ता कक्षा 6 बी के छात्रों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। एंसेम्बल 2022 विद्यार्थियों को हमेशा कुछ नवीन और ज्ञानवर्धन बातों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे विद्यालय की प्रशासक प्रमुख श्रीमती अनिता वडेरा जी, हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा अग्रवाल जी और पर्यवेक्षी प्रमुख श्रीमती ऋतु महाजन जी का, जिन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा नवीन बातों को सीखने के लिए प्रेरित किया है। हमारा आज का विषय है रानी पद्मावती। सिंहल द्वीप की राजकुमारी तो मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। नारी सदैव से ही पूजनीय रही है। अगर उसे खिलौना मात्र समझकर अपनाने के लिए सोचा जाए तो वह स्वीकार्य नहीं। अलाउद्दीन के नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए जौहर की आग को स्वीकारा गया। किस प्रकार रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का परिचय दिया है, वह आप हमारी इस प्रस्तुति में देखेंगे। आगे का कार्यभार मेरे सूत्रधार संभालेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वह आपको उनके काल में ले जाए। सुप्रभात। आज मैं अंशिका, मेरे साथी आहाना और तनिष्का कक्षा 9 टीएडीएवी मॉडल स्कूल के विद्यार्थी आप सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर्ष का दिन है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष हम सब एंसेम्बल 2022 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज वह शुभ दिन आ गया है। इस शुभ दिन पर हमें आशीष देने हमारे गुरुजन भी हमारे समक्ष बैठे हैं। हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सीमा अग्रवाल जी व प्रशासक प्रमुख श्रीमती अनीता वडेरा जी, जिन्होंने हमेशा हमें कुछ नवीन व ज्ञानवर्धन बातों को सीखने के लिए प्रेरित किया है। वहीं पर हमारी पर्यवेक्षी प्रमुख श्रीमती ऋतु महाजन जी ने भी हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संचालिका की भूमिका निभाई है। हम सब विद्यार्थी आप सबका शत-शत नमन करते हैं और अपने आभार को कुछ पंक्तियों द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं। जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्ते रंजा नहीं हो जाता पद पर मेल कहीं। सीमित पगड़न लंबी मंजिल तय करना कोई खेल नहीं। इस पद पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आभारी हूँ मैं उन सबका जो दे गए व्यथा का प्रसाद। जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। अपने देव गुणों की आराधना करते हुए हम सब अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कहा जाता है कि शिव तांडव स्त्रोत संदेह मात्र ही संपत्ति, संपादि और समृद्धि प्रदान करता है, तो क्यों ना हम सब भी इसका लाभ उठाएं। हमारी कक्षा की मेधावर्ग शिव स्त्रोत प्रस्तुत करने जा रही है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहम्। क्या तुम्हें भारत की वीरांगनाओं के बारे में पता है? दया और माया की मूरत जब बनती महतारी है, रौद्र रूप धारण कर लेती जब सामने अपने साहस के दम पर नव इतिहास बनाना है। तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हमारा भारत देश जहाँ कितने ही वीरों ने उसका मान बनाए रखा, तो वही वीरांगनाओं ने भी अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया। मैं इन पंक्तियों में रानी
सिंह अर्थात रानी पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी के विषय में बता रही थी। उन्होंने ऐसा कौन सा वीरता का कार्य किया था? जंग के मैदान में लड़ना ही वीरता की निशानी नहीं होती, अपितु अपने साहस को साथ लेकर अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा करना भी वीरता की निशानी है। क्या तुम्हें रानी पद्मावती के बारे में और भी जानकारी है? है तो सही, पर मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अपने दर्शकों को भी उनके बारे में उनका परिचय देना चाहूंगी। आइए हम कृष्ण द्वारा रानी पद्मिनी का परिचय देते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने भी पद्मिनी का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। सिंघने कथक गाऊं औसो पद्मिनी बड़ी सुनाऊं, निर्मल दर्पण बाकी सेहा जो जही रूप तो तैसी। हे मिट्टी पे खींची लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल है। मनमोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा पर से झर 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 नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। ये तो बड़ी चंचल और सुंदर थी। पर बचपन में ये ऐसी नहीं थी। पद्मावती में गुलाउद्दीन खिलजी भी थे, वह बहुत क्रूर था। उनके बारे में तो मैंने भी सुना है। वो बचपन से ही अपनों के सगे नहीं थे। जालसाजी और बेईमानी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। आइए इसका भी परिचय एक नृत्य प्रस्तुति द्वारा ले लेते हैं। हबीबी हबीबी हबीबी, जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। मुझे तो इसे देखकर बहुत डर लगा, तुम्हें डर नहीं लगा? इससे भयभीत कौन, इससे भयभीत करने वाला या हराने वाला कोई नहीं था। इससे भयभीत ना होने वाला एक शौर्यवीर था। रानी पद्मावती के पति मेवाड़ के राजा राजा रावल रतन सिंह थे। सबको जीवन देख पाती तो मैं उनको भली बात समझ पाती। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश। चलो चलचित्र द्वारा तुम्हें इनके कार्य रघुकुल सूरज मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। बोलो महारानी पद्मावती की, महारावल रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की। आप सभी से मैं रानी पद्मावती का परिचय करवाना चाहता हूँ। ये सिंहलदीप के राजा परमाल जी भाटी की पुत्री हैं तथा बुद्धिमानी और सहनशीलता की एक अद्भुत मूर्त हैं।
महाराज, रानी पद्मावती को भी वैसे ही मान सम्मान मिलेगा जैसी आपकी अन्य रानियों को मिलता है। मेवाड़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद बड़ी रानी साहब, आपके प्रेम भरे शब्दों से मैं भाव विभोर हो गई हूँ। आपको शत शत नमन। आओ जी आओ घूमरड़ी खेलबान पधारो सा घूमरड़ी खेलबान अलम थारो गुररा गुररा गुरराव आस मारो जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सके चमक चमक घुघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खेलबान आओ सा घूमरड़ी खेलबान पूरा मेवाड़ जहाँ रानी पद्मावती के आने की खुशी मना रहा था, तो वहीं राघव चेतन गुफा की खूह में बैठा काला जादू कर रहा था। कालिका स्वाहा, कालिका माते, कापालिका स्वाहा स्वाहा, कापालिका स्वाहा, कापालिका स्वाहा। राघव चेतन को दरबार में जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। महाराज, इतनी रात को बुलाया, सब कुशल मंगल तो है? राघव चेतन, आप हमारे दरबार के शाही दरबारियों में से एक हैं तथा एक उम्दा संगीतकार हैं। उसके बावजूद आप काला जादू कर रहे हैं। महाराज, मैं तो राज्य की भलाई के लिए ही तंत्र मंत्र कर रहा था। राघव चेतन, राज्य का नाम लेकर आप अपने गुनाहों पर पट्टी नहीं डाल सकते। आप दोषी करार किए गए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, आगे से ऐसी कोई भूल नहीं होगी। खामोश! हमने तुम पे विश्वास किया, चंदन समझ के माथे पर लगाया, पर तुम तो चंदन में लिपटे सांप निकले। ब्राह्मण हो तभी तुम्हें छोड़ रहे हैं, अथवा तुम्हें फांसी की सजा दे देते। अब हम तुम्हें मेवाड़ की सीमाओं से बेदखल करते हैं। महाराज, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं अपने अपमान का बदला ले जरूर आऊंगा। राघव चेतन अपने अपमान को सह न सका, जिसकी वजह से उसने मेवाड़ राज्य से बदला लेने की ठानी और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। आसमां का हर तारा चांद बनना चाहता है कफूर, लेकिन बन नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, आपके शिकार का समय हो चुका है। जैसे ही आपका हुक्म दिया जाएगा, उसकी तैयारी होगी। मलिक कफूर, तुमने कुछ सुना क्या? हाँ, कोई बांसुरी बजा रहा है। जो भी हो, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म मेरे जहाँ पर ना, खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान यह कह रहा है, यह मेवाड़ का राजसी गायक है। इसको राज्य से निकाल दिया गया है। प्रणाम महाराज। दिल्ली के शासक को मेरा प्रणाम। महाराज, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दिल्ली पर ही क्यों राज करते हैं? आपको तो भूपति बनना चाहिए। मैंने आपको अपनी विद्या से विश्व विजेता बनते हुए देखा है, पर ये तभी संभव होगा जब वो आपके साथ होगा। पूंजी है आपके भाग्य की, वो मिल गई तो मेवाड़ आपका, दुनिया आपकी, हिंद आपका, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, जो लेगी दुनिया सारी। नायाब है, पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन है। किस्मत है अलाउद्दीन की, तुम बस नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावतनामा।
आप अपने खानदान के साथ आएं, हमारे हाथों से 2 निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ सिकंदर सानी की तलवार के साए में महफूज रहे। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। राजा रतन सेन ने अलाउद्दीन के फरमान को ठुकरा दिया, जिससे वह उस पर आक्रमण करने आ गया था। सावधान कर दो पूरी कायनात को कि राजपूतों के सूरज के ऊपर खिलजियों के चांद का ग्रहण रखने वाला है। आक्रमण! चित्तौड़ की दीवार पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। जिसने भी कोशिश करी केवल हार का सामना किया। खिलजियों ने कभी हार कबूल नहीं करी ब्रह्मचारी। शाम होने से पहले हमारे 2 सैनिक को भेज दो। को हार का सामना करना पड़ा और वे राजा रतन सेन के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने उसके पास। महीनों से आपसे मिलने की चाह लिए थे, आज जाकर वो दिन आया है। अब जब आप आ ही गए हैं तो आप बता दीजिए आपको कैसे स्वागत करें। आपके लिए नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप राजपूतों की शान है तलवार। मेवाड़ की संपन्नता और शान शौकत देखकर खिलजी ने मन बना लिया कि वह उसे हत्याकर ही रहेगा। आपकी मेहमान नवाजी से हम बहुत प्रसन्न हुए। दिल्ली लौटने से पहले सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। आप खिलजी का निमंत्रण ठुकरा दीजिए। किसी का निमंत्रण ठुकराए ऐसे राजनीत हम नहीं। आप अपने साथ तलवार लेकर जाइए, बाहर तूफान आने का अंदेशा है। खिलजी किसी ना लौट चुकी है, हम उससे मिलकर जल्द से जल्द लौटेंगे। खुशामदीद मेरे अजीज, हमें लगा आप नहीं आएंगे। राजपूत अपने वालों से कभी मुकरते नहीं। एक अजीब सा रिश्ता हो गया है आपकी बेटी के साथ। इसे घर ले जाना चाहते हैं और आपको गलती कर दी हमने तुम पर एक बार फिर भरोसा करके। अल्लाह भी खिलजी पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। अगर रावत केतन को देश निकाला नहीं देते तो आज रावल साहब हमारे बीच होते। उन देशद्रोही के वजह से हमारी खुशियों में घृण लग गया है। बड़ी रानी साहब, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। पद्मावती, अगर रावल साहब को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बड़ी रानी साहब, हम वहाँ जाएंगे और रावल साहब को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। आप शायद भूल रही हैं कि राजपूतियों के गगन में जितनी ताकत होती है उतनी ही राजपूतियों के तलवार में। रानी साहब, आप खुद ना जाए, हम ही अपनी तलवारों से खिलजी और उसके सेनापतियों को मारकर महाराज को वापस ले आए। सेनापति, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, इस बार युद्ध नीति से जीता जाएगा। जो हुक्म रानी साहब, बताइए क्या आदेश है। खिलजी को हमारा संदेशा दे दिया जाए कि रानी पद्मावती आने के लिए तैयार है और अब मैं अपने साथ 800 दासियों को भी लेकर आएंगी और गद्दार रावत से घर से अलग कर दिया जाए। मेवाड़ राज्य की चाह में अलाउद्दीन पद्मावती की सब शर्तें मानता है। मंजूर है। हुजूर, मेरी वजह से आपको मेवाड़ राज्य मिल रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर वो शर्त जो मुझे मेवाड़ के पास ले जाए मंजूर है। रानी पद्मावती अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से राजा को छुड़ा लाती है। जब अलाउद्दीन को इसका पता चलता है तो वह राजा रावल रतन सिंह के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है।
विश्वास नहीं कर सकता। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना किसी ने सुनी होगी और ना किसी ने देखी होगी, और ये लड़ाई हम उस शतरंज में लड़ेंगे और ये अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार होगी। इस पवित्र अग्नि में हम अपने आप को सौंप देंगे। यह शरीर जलकर राख हो जाएगा, मगर अमर रहेंगे हम राजपूतियों की शान, हमारे असूल, हमारे स्वाभिमान, और यही हमारी जीत होगी। आखिर पर हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मनी हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। आशा है आप सभी को हमारी चलचित्र प्रस्तुति पसंद आई होगी व आपने सीखा होगा कि नारी सदैव योद्धा थी, है और रहेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे अभिभावकों का, मेरे नायक मंडल का व मेरे प्रिय छात्रों का, जिन्होंने समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।